Hi kids, how are you? Taking up कौन सा lecture है भूल जाता हूँ. Lecture number 7 of matrices. Fine. Today I'll start up with one of the best question of matrices with you. ठीक है? That is a question number 18. Very very important. Take care. Now देखिए ध्यान से और ये कंफर्म है, ऐसा नहीं हो सकता पूरे साल में स्कूल में ये क्वेश्चन एक बार भी ना पूछा जाए. ठीक है, ध्यान रखना. Now what happens in this case? ये क्या होता है? वो कहते हैं A is given to you what? 0 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 and sorry this is 0, this is what 0. ठीक है. now next we have हमें शो क्या करना है. शो ध्यान से देखना. शो that I plus a is equal to I plus a is equal to I minus a into I minus a into what we have cos alpha minus sin alpha. This is sin alpha and this is what cos alpha. That's what we have. ठीक है, ध्यान से देखिए इसका. if I take up the left hand, now if I have the left hand limit left hand side, not left hand limit, sorry, अभी डेरिवेटिव किया है तो दिमाग में घूम रहा है. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? दैट इज i प्लस ए. i प्लस ए क्या होता है? i वी नो इट. हाँ, इसका i का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 लेंगे क्योंकि एक ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है. तो i क्या होगा? दैट कम्स आउट टू बी 1 0 0 1 प्लस व्हाट वी आर हैविंग 0 माइनस tan alpha by 2 tan alpha by 2 and 0. When I add up what I get, it comes out to be 1 minus tan alpha by 2. This is tan alpha by 2 and this is 1. That's what we have. ठीक है. Now next we have is right hand side. Next मेरे पास क्या आता है? right hand side मेरे पास क्या है? I minus a into what we have cos alpha minus sin alpha. This is sin alpha and this is cos alpha. Now I minus a क्या होगा? That comes out to be 1 0 0 1 and minus a. ध्यान रखना, this is what minus a. a क्या होगा? That comes out to be this is 0 minus tan alpha. This comes out to be what? Sorry, tan alpha by 2. This is tan alpha by 2 and this is 0. ठीक है. into. अब ध्यान से शो. अब खेल शो. अब ध्यान से देखिए ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स मेरे को यहाँ दिया हुआ है, दिस मैट्रिक्स, इसमें हम क्या करते हैं? वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ट्रिगो. ट्रिगो का फॉर्मूला कैसे है? लाइक वी हैव इट. आई जस्ट शो यू टू फॉर्मूलाज ऑफ इट. जैसे हमारे को क्लियर है साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a. ऐसे ही cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? is what 1 minus tan square a by 1 plus tan square a. That's the formula. अब यहां पे हम क्या लगाएंगे? We'll use a half angle formula. इसका कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं. दैट मींस cos अल्फा के साथ जगह क्या होगा? उसका आधा. दैट कम्स आउट टू बी 1 minus tan square alpha by 2 by what we are having 1 plus tan square alpha by 2. Now this comes out to be what we have. Next मेरे पास क्या आता है? ये sin minus 2 tan alpha by 2 by 1 plus tan square alpha by 2. Now this comes out to be नीचे ये क्या आएगा? This comes out to be 2 tan alpha by 2 by 1 plus tan square alpha by 2. Now this comes out to be what we have. This is what 1 minus tan square alpha by 2 by 1 plus tan square alpha by 2. इसको हम इस ढंग से लिखते हैं. ठीक है. Now if I get this can be written as what we have. This is इनको subtract करेंगे. This is 1. This is 1. This is tan alpha by 2. This is minus tan alpha by 2 and this is 1. ठीक है. So this comes out to be what we have 1 minus tan square alpha by 2 by 1 plus tan square alpha by 2. This is minus 2 tan alpha by 2 by 1 plus tan square alpha by 2. This comes out to be what? ये क्या आता है? This is 2 tan alpha by 2 by
1 plus tan square alpha by 2. This comes out to be 1 minus, same as it is ही उतारा, अभी तो कोई चेंज हमने किया ही नहीं है, 1 plus tan square alpha by 2. ठीक है. Now when I multiply, अब मैं अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, this into this plus this into this, that will come out to be what we have. और सभी का डिनोमिनेटर यही है, सभी का डिनोमिनेटर ध्यान से देखना 1 plus tan square है, तो इसको क्या लिख दो डिनोमिनेटर में 1 plus tan square alpha by 2. न्यूमरेटर क्या आएगा, this is 1 minus tan square alpha by 2, और ये क्या आएगा plus 2 tan square alpha by 2. ठीक है. नीचे भी ध्यान से देखना, नीचे ये जो है इसका फिर से डिनोमिनेटर क्या है 1 plus tan square alpha by 2. सभी का डिनोमिनेटर यही है, सभी का डिनोमिनेटर क्या है 1 plus tan square alpha by 2. इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, सॉरी 90 हो गई. नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो 1 plus tan square alpha by 2. सभी का डिनोमिनेटर यही है, सिर्फ हमें न्यूमरेटर का ध्यान देना है. ठीक है. नाउ दिस इनटू दिस, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, पहले 1 को इससे करेंगे, दैट इज व्हाट -2 tan alpha by 2. अगला क्या आ गया, दिस इज प्लस tan alpha by 2 minus tan square alpha by 2. नाउ ध्यान से देखना, this with this one, तो ये क्या आएगा minus tan alpha by 2 plus tan cube alpha by 2, or sorry, this with this one, and now this with this one, then we have plus 2 tan alpha by 2. ये भी ध्यान से देखना, इसको इधर किया tan, ये tan cube आएगा 1 minus 2, then tan with this, ये tan cube होगा, ध्यान रखना, this is also tan cube. Now अब ये वाला इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस विद माइनस इट बिकम प्लस 2 tan square alpha by 2, और नीचे क्या आएगा 1 plus 1 minus tan square alpha by 2. This is what we have. Now please take care, इसको मैं इस पोर्शन में सॉल्व करूंगा, रिमेनिंग जॉब, सो सॉरी, प्लीज टेक केयर ऑफ इट. ये ध्यान से देखना, ये अब ज्यादा नहीं रहा, minus tan square alpha by 2 plus tan square alpha by 2 will give us what we are having here up, that is 1 plus tan square alpha by 2 by 1 plus tan square alpha by 2. इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाना. ठीक है. अब इसको सॉल्व करेंगे, -2 tan alpha by 2 plus tan alpha by 2 gives us minus tan alpha by 2 minus tan cube alpha by 2 by 1 plus tan square alpha by 2. अब इसको ध्यान से देखना, minus tan alpha by 2 plus 2 tan alpha by 2, it gives us what we are having, this is tan cube alpha by 2 plus tan alpha by 2 by 1 plus tan square alpha by 2. ठीक है. Now next what we have, next मेरे पास क्या आएगा, 2 tan square alpha by 2 minus tan square alpha by 2. This is what we have, 1 plus tan square alpha by 2 by 1 plus tan square alpha by 2. So what I get from here, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, this comes out to be what, ये सॉरी, ये मेरे पास क्या आता है, ध्यान से देखना, ये ऊपर नीचे कटेगा, इट इज 1. ये यहाँ पे क्या है, माइनस tan alpha by 2 कॉमन 1 plus tan square alpha by 2 by 1 plus tan square alpha by 2. ये और ये कट जाएंगे. ठीक है. नाउ नीचे इसको आगे ही करते हैं, यहाँ से क्या है, tan alpha by 2 कॉमन 1 plus tan square alpha by 2 by 1 plus tan square alpha by 2. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव 1 plus tan square alpha by 2, ये दोनों भी आपस में काट दो ना, तो ये क्या आ जाता है, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव, दिस इज 1. ठीक है. सो दिस गिव्स मी द आंसर. ये भी ध्यान रखना, ये और ये भी आपस में कट गए, तो इसने मेरे को आंसर क्या दिया, 1 minus tan alpha by 2, this is tan alpha by 2 and this is 1, that is equal to your left hand side. So this is what my answer is. थोड़ा सा बड़ा है, आखिरी में जाके थोड़ा सा ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया, सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट. हाँ, कई लोग इसको एक और भी मेथड से करते हैं, दे एज्यूम, उससे थोड़ा सा और छोटा लगता है. छोटा कैसे लगता है, tan alpha by 2 को t एज्यूम कर लेते हैं, दे एज्यूम tan alpha by 2 as t. तो उसमें सब जगह हम क्या यूज करते हैं,
tan अल्फा बाय 2 की जगह t को हम एज्यूम करके एंड देन वी प्रोसीड फॉरवर्ड, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वाज द 18th वन. लेट्स टेक अप द 19th वन. 19th इज अ इजी वन, बहुत आसान है 19. ध्यान से देखिए इसको. Okay, now look into this one. नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा? नेक्स्ट क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 19. 19 इज अ इजी वन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. अगर अपनी अपनी बुक्स हो उनको जरूर खोल लें. प्लीज टेक केयर, जब भी आप मेरे कोच साथ बैठे काम करने के लिए अपने साथ एनसीईआरटी की बुक्स को लेके जरूर बैठें. ध्यान से देखें. क्वेश्चन नंबर 19. अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 that must be invested in two different types of bond. First bond pay 5% interest per year and the second bond pay 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bond. If the trust must obtain an annual interest of 1800 और B में it is 2000. वो कह रहा है 30,000 रुपया है, उसको मेरे को दो तरह के बॉन्ड पे इन्वेस्ट करना है. एक 5% पे इन्वेस्ट करना है और एक को 7% पे इन्वेस्ट करना है. वो कह रहा है कितना कितना पैसा मैं इसमें लगाऊंगा, कितना पैसा 5% में डालूंगा, कितना पैसा मैं 7% में डालूंगा, सो दैट आई कैन गेट अ इंटरेस्ट ऑफ 1800 रुपीज. ठीक है, तो हम क्या लेके चलते हैं, एज्यूम करते हैं लेट द अमाउंट ऑफ मनी let the amount of money invested at 5% bx, then the amount of money invested at 7% b 30,000 माइनस एक्स, इतना पैसा लगा दिया. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स की शेप देते हैं. हम नॉर्मल अगर हम सॉल्व कर रहे होते तो हम क्या करते हैं 5 into 100 by x plus 7 into 100 by x. बट हम मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स से सॉल्व करना है, तो हमें इस तरह से ध्यान रख के चलना है. 5x से ही मल्टीप्लाई हो, 7 30,000 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, तो दो मैट्रिक्स लेंगे. लेट ए हम क्या एज्यूम करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी दैट इज x and this is what 30,000 minus x. b को हम क्या लेके चलते हैं, b क्या हो जाएगा, that is what 5%, 5 by 100 and this is 7 by 100. ठीक है, now अब मेरे पास क्या आता है, as interest is कितना है, इंटरेस्ट is rupees 1800. So AB is equal to 1800. AB कितना है, x 30,000 minus x into 5 by 100 7 by 100 is equal to what, 1800. अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 5x by 100 प्लस इसको करोगे 2 1 1 2 3 4 माइनस 7x by 100 इज इक्वल टू व्हाट आई हैव 1800. ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो नीचे एलसीएम आया 100. दिस इज व्हाट वी हैव 5x प्लस 2100 माइनस 7x इज इक्वल टू 1800. इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, दिस कम्स आउट टू बी 2 1 1 2 3 4 हम जीरो गिनने की आदत है, माइनस 2x इज इक्वल टू 1 8 2 3 4, क्योंकि 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया. माइनस 2x इज इक्वल टू व्हाट वी गेट 1 लाख, सॉरी 100,000 80,000. ये क्या होता है, माइनस 2 लाख 10,000. This is what we have 2 1 1 2 3 4.
ठीक है, तो दैट कम्स आउट टू बी, इफ आई सी टू इट, माइनस 2x इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, दिस कम्स आउट टू बी माइनस 30,000, दिस इज माइनस 30,000, दोनों को काटा, x इज इक्वल टू 15,000, तो बराबर का ही पैसा दोनों पे इन्वेस्ट करेंगे. इफ वी वांट द इंटरेस्ट एज 1800, इफ वी वांट द इंटरेस्ट एज व्हाट 1800, एक में 15,000, दूसरे में भी 15,000 लगेगा. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या कर दिया गया, 1800 की जगह उसने क्या कर दिया, 2100 कर दिया. तो वी फॉलो द सेम प्रोसेस, हम इसको आई जस्ट यूज अप द सेम लॉजिक, सेम मेथड से हम आगे चलते हैं. इसके अंदर वो क्या लेके चलते हैं, सेम, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ ये चेंज हुआ, सिर्फ क्या बदला, ये बदला. ऐसे ही यहाँ पे भी ये बदल जाएगा, बाकी सब सेम है. ठीक है, अब ये क्या था मेरे पास, ए बी इज इक्वल टू व्हाट आई हैव, ए बी कितना था, ए बी इज व्हाट, पहले कितना था 18, अब क्या है 2000, ये क्या है 2000 रुपया. अब इंटरेस्ट कितना चाहिए मेरे को, 2000 रुपया इंटरेस्ट चाहिए. ये कितना है 5 और ये इतना, ये कितना हुआ 2000. ठीक है, ध्यान से देखना, दिस इज अगेन 2000. ठीक है, तो जब उधर गए 1 2 3 4 3 2 5, ठीक है, तो व्हाट वी हैव, अगेन वी हैव द सेम 20, तो क्या बचेगा -1, तो क्या बच रहा है, दैट इज माइनस 10,000. तो ये कितना आ गया, दैट इज व्हाट वी हैव 5,000. So money invested at 5% is 5,000 and the money invested at 7% is 25,000 with us. I hope this is clear to everyone. पक्का कोई दिक्कत किसी को नहीं है इस केस में, sure about it? Okay, let's move on to the next one. Next one is a easy one. आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है. ठीक है, ध्यान से देखिए इसको. Now look into this one carefully. देखिए ध्यान से इसको. Now question number it is, वो कहता है a book shop of a particular school has a 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Their selling price is rupees 80, 60 and rupees 40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. Using what? Matrix algebra. Now ध्यान से देखना अब इस केस को. मेरे पास क्या कहता है, वो बुक्स को बेचने से कितना मिला, दैट इज व्हाट वी हैव. ए इज इक्वल टू, कौन कौन सी बुक्स थी हमारे पास पहले, वी हैव, वो कहता है 10 डजन केमिस्ट्री, तो हम क्या लेके चलते हैं, हमारे पास क्या है 120 किताबें हैं. फिर दूसरा क्या है मेरे पास 10 डजन ऑफ इकोनॉमिक्स, सॉरी 8 डजन ऑफ दिस वन, दैट इज 96. और तीसरी किताब कौन सी है फिर 10 डजन ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज अगेन 120. ठीक है, इसको रो में लिया, दूसरे को कॉलम में लेना पड़ेगा. प्राइस को हम क्या लेते हैं बी. अब इसको हम क्या लेंगे, वो कह रहा है जो ईच देयर सेलिंग प्राइस इज 80, 60 एंड 40. तो ये क्या है 80, 60 एंड 40. अब कह रहा है टोटल प्राइस निकालो. टोटल प्राइस क्या है, ए बी. प्राइस क्या है ए बी, दैट इज 120, 96, 120 into 80, 60, 40. This will get multiplied this into this plus this into, या लिखते हैं इसको, बाकी अपने आप करना. 120 into 80 plus 96 into 60 plus what we have 120 into 40. So that's what the answer है. ठीक है, इसको सॉल्व करके आप अपना आंसर निकालेंगे. ठीक है, now look into the 21st question of it. इसका 21st क्वेश्चन देखें, that's a very easy one. ध्यान से देखना, लॉजिकल है, गुड 1 मार्कर वी कॉल इट. इसके ऊपर जरूरी कि इस तरह यही आए, इसके अलावा कुछ और भी 1 मार्कर में आपके से पूछा जा सकता है. वो क्या कहता है मेरे को, ही सेज इट यू, मेरे पास ऑर्डर दिए हुए, मेरे पास क्या कहा, एक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस n. y का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस k. देन वी हैव z का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस p. W का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस n, सॉरी n क्रॉस 3. इट इज नॉट 3 क्रॉस n, इट इज n क्रॉस 3. और मेरे पास आखिरी क्या बचा p का ऑर्डर क्या है p क्रॉस k. ये ऑर्डर है मेरे पास. ठीक है,
अब मेरे को उसने क्या बोला, वो कहता है पी वाई प्लस, इसमें सॉल्विंग कुछ नहीं है, और लॉजिक टी डब्ल्यू, ठीक है, ये दिया हुआ है। वो कहता है द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी, रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी, क्योंकि यही तीन वेरिएबल यूज कर रहे हैं ऑर्डर के अंदर, सो दैट दिस इज डिफाइंड, सो दैट दिस इज डिफाइंड। वी यहां पे हम दो रूल यूज कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट और एक एडिशन। प्रोडक्ट इज पॉसिबल इफ द कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू द रो ऑफ सेकेंड, ठीक है, कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड, ठीक है, प्रोडक्ट इज पॉसिबल। देन एडिशन इज पॉसिबल इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम, इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम। हाँ, तीसरा एक और रूल भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जैसे मैंने भी बोला, प्रोडक्ट इज पॉसिबल इफ कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड, एंड द रिजल्ट विल बी व्हाट, रिजल्ट का ऑर्डर क्या होगा, विल बी रो ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड, रो ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड। उसी को मैं यहां पे यूज करूंगा। मेरे पास यहां पे क्या है, पी का ऑर्डर क्या है, पी का ऑर्डर क्या है, पी का ऑर्डर इज पी क्रॉस के, वाई का ऑर्डर क्या है, दैट इज 3 क्रॉस के। नाउ यहां पे W क्या है, W ध्यान से देखना, व्हाट इज W, W इज n क्रॉस 3, फिर Y क्या है, Y इज व्हाट वी हैव 3 क्रॉस k। अब ये प्रोडक्ट इज पॉसिबल, इसका प्रोडक्ट इज पॉसिबल, दैट मींस k इज इक्वल टू 3, रिस्ट्रिक्शन क्या लग गई, k 3 है, k क्या है 3 है, यहां तो बराबर ही है, तो प्रोडक्ट इज पॉसिबल, ठीक है। अब जो मेरे पास प्रोडक्ट आया, अब जो मेरा इसका प्रोडक्ट आया, हमें प्रोडक्ट तो आया, ये कंफर्म है, उसका ऑर्डर क्या आया, उसका ऑर्डर इज P क्रॉस K, उसका ऑर्डर इज व्हाट, P क्रॉस K, इसका ऑर्डर इज व्हाट, इसका ऑर्डर क्या आया, N क्रॉस K। नाउ अब यहां पे ध्यान से देखना, एडिशन इज पॉसिबल इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम, तो यहां पे क्या है, P इज इक्वल टू, क्योंकि K तो K के बराबर है, एडिशन इज पॉसिबल, ये और ये बराबर हैं, और उसने बोला इट इज पॉसिबल, this product and sum is defined. Now, so that means what we have, P is equal to N. ये restriction है मेरे पास. I hope this is clear to you. ऐसे ही इसका अगला क्वेश्चन है, that is a question number 22 sorry. उसमें मेरे को क्या कहा गया, वो कहता है if N is equal to P, सारी ऑर्डर ऊपर वाला ही है, then और मेरे पास ये क्या दिया है 7x minus 5z। अब कह रहा है अगर N P के बराबर है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अब ध्यान से देखना, यहां पे x का ऑर्डर क्या है, x का ऑर्डर इज व्हाट 2 क्रॉस n, और इसका ऑर्डर क्या है, z का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस p, और उसने बोला ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों के दोनों बराबर हैं, दैट मींस द डिफरेंस इज पॉसिबल, दैट मींस द डिफरेंस इज पॉसिबल है, ये पॉसिबल है क्योंकि ऑर्डर सेम है। अब वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, आइदर विल बी 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि n और p बराबर हैं, तो वो 2 क्रॉस n भी हो सकता है, 2 क्रॉस p भी हो सकता है। मेरे पास जो ऑप्शन यहाँ दी हुई है वो क्या दी हुई है, 2 क्रॉस n दी हुई है, तो आई टेक अप द ऑप्शन इज 2 क्रॉस n। आर यू क्लियर विद दिस, पक्का। विद दिस आवर एक्सरसाइज 3.2 इज ओवर, फाइन। नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट अप विद यू another important topic, that is symmetric and a skew symmetric matrix, symmetric and स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब पहले हम शुरू होते हैं ट्रांसपोज और फिर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे आते हैं, ठीक है। तो वी डिड टुडे वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी आगे 2-3 जो क्वेश्चन थे छोटे छोटे से थे, अच्छे थे। ये लॉजिकल था, इज अ गुड 1 मार्कर, और जरूरी है इसी फॉर्म से आए, किसी और फॉर्म से भी पूछा जा सकता है, बट आपको बेसिक लॉजिक क्लियर होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल इफ द कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड, जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, रो ऑफ फर्स्ट एंड कॉलम ऑफ सेकंड, ठीक है। ऐसी भी से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम, इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम, वही लॉजिक हम इसमें यूज करते हैं। प्लीज टेक केयर, आई होप यू हैव एंजॉयड इट। आपको अगर कोई भी सपोर्ट, कोई भी मटेरियल हेल्प चाहिए हो, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर एंड गेट इट, और इफ यू like these lectures, आपको अच्छे लगे, do ask everybody to subscribe, even you subscribe and ask other friends also to subscribe, ठीक है। For any material support you can call me on this number, and better WhatsApp me, don't call, WhatsApp करें, I'll revert back to you, ठीक है। Sure, take care, have a nice time, enjoy yourself, God bless you, have a nice day.